Hello and welcome everyone on my Urban Geography Verse YouTube channel. Dear students, today we are going to study very important crop, that is jute. It is an important cash crop. So we will cover it in our important topic agriculture, which we are going for class 10th ICSE board. Basically 2 to 3 important questions are asked each and every year from this part or from this topic, that is cotton when we talk. Okay, so this is an important crop which we have to study. It is in our syllabus. So basically dear students, we have covered already tea, coffee, cotton, and this is jute. And when we talk about the rice, wheat and sugarcane also I have made a video. When we talk about the sugarcane, rice and wheat, I will make a separate video from the very starting. That is in that video all the topics will be covered from agriculture, types of agriculture, problem of Indian agriculture. In that only I will cover rice and wheat, and rest separately I have dealt. If you have please not studied or gone through these topics, please do so. Okay, so we'll start now, dear students. You see, so the important topic which we are going to cover here about jute, first topic we will have a short introduction, then we will go for its climatic condition which are required for the growth of a jute, then method of cultivations, what are the various methods of cultivations involved in this jute, and distribution. These are the important topics which we have to study. In this, the most important thing is this method of cultivation. From here only the questions will be asked, and the most important question is rating. Okay, about rating, availability of pond, water bodies and lake, about the size of the jute. These are the few important questions from which each and every year questions are asked. Okay, so we'll proceed with the first. You see, directly we will go to this first point, that is introduction. You see, it is an important fibrous crop. See, this important word is here, it is fibrous word. Okay, it is an important fibrous crop, means it have fiber. For the fiber itself we cultivate this jute. Okay, it is an important fiber crop in India. It is obtained from inner bark of the jute plant. यानी बेसिकली अगर आप बात करो तो देखो, आप जो जूट प्लांट है ना, इसका जो इनर बार्क का मतलब ये जो टहनी हो, सपोज करो स्टेम हो गया, स्टेम का जो आउटर पार्ट होता है ना, जिसको आप देखोगे उसका जो सेलुलोज का बना होता है, उसके अंदर ना पतले पतले ऐसे रेशे होंगे, उन्हीं रेशों को ही हमको निकालना होता है, और ये उसके आउटर बार्क यानी उसके छिलके में होगा। ओके, आउटर बार्क यानी इसके छिलके में होता है ये पतला पतला रेशा, जिसको हमको निकालना होता है। ओके, और इसी से हम रस्सी वगैरह बना लेते हैं। ओके, देयर आर टू स्पीसीज, दैट इज कॉर्कस कैप्सुलरिस, दैट इज व्हाइट जूट, एंड कॉर्कलस ओलिस्टोरियस, दैट इज टोसा जूट। सो ओनली यू गो थ्रू दिस नेम ओनली। ओके, नेक्स्ट व्हाइट जूट, इट अकाउंट्स फॉर नियरली 75% ऑफ द नेट सोन एरिया, यानी सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में जो खेती होती है, अगर आपसे पूछा जाए किस जूट की है, देन दिस इज द व्हाइट जूट। ओके, दिस इज अबाउट 75% ऑफ द नेट सोन एरिया। इट इज हाईली अडेप्टेबल टू बोथ लो लैंड एंड अपलैंड। अब देखो यहाँ कॉन्सेप्ट आता है ना, बार बार यूज कर रहे हैं वर्ड लो लैंड एंड अपलैंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लो लैंड एंड अपलैंड? अब देखिए, जब यहाँ बात करें हम कि लो लैंड और अपलैंड का मतलब क्या है, तो यहाँ कुछ खास हो जाता है। लो लैंड का मतलब वो जगह जहाँ पे वाटर स्टेगनेट हो, यानी जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो, इरिगेशन भी हम वहाँ कर सकते हो। वही अगर हम बात करें अपलैंड का मतलब थोड़ा वो हाइट पे प्लेस हो, मीन्स दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। सो दिस व्हाइट जूट बेसिकली इट इज अडेप्टेड फॉर बोथ लो लैंड एज वेल एज द अपलैंड, बोथ द प्लेसेस इट इज अडेप्टेड, यानी इसकी खेती लो लैंड अपलैंड दोनों जगह होती है। नेक्स्ट विल गो फॉर द टोसा जूट। सी, इट इज ग्रोन ओनली ऑन द अपलैंड। अब जब टोसा जूट की बात करें तो देखो, आप उसमें इसकी जो खेती करते हैं ना, वो सिंपली आप देख लो सिर्फ अपलैंड पे करते हैं, एंड अकाउंट्स फॉर द 25%, यानी जो पूरा प्रोडक्शन है उसका कितना ये दे रहा है, 25% दे रहा है। ओके, ऑफ द नेट सोन एरिया। इट इज यूज फॉर मेकिंग रफ, हाँ देख लो भैया, आप इसका ये यूज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल यू सी दिस इज टोसा जूट। अब इसका यूज क्या है, इट इज यूज फॉर मेकिंग रफ क्वालिटी क्लोथ, ये आपको याद रखना ही है, कारपेट्स, सैक्स यानी बोड़ा वगैरह, एंड अदर पैकिंग मटेरियल्स। क्वेश्चन हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग जूट इज यूज फॉर मेकिंग carpets, sacks, packing materials or rough quality cloth. So you should know that the answer is Tosa jute. Okay.
In comparison to the white jute, its production is a bit lower. Okay, it is grown on the upland. Upland का मतलब थोड़ा सा ऊंचाई पे इसको ग्रो किया जाता है, ये यानी पानी की कमी को बर्दाश्त कर सकता है. नेक्स्ट, थर्ड वैरायटी ऑफ द जूट इज मेस्टा. इट इज एन इंफीरियर. देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्सटीट्यूट ऑफ जूट. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. सब्सटीट्यूट ऑफ जूट जहां क्वेश्चन पूछा, आपका तुरंत आंसर होना चाहिए मेस्टा. इट इज द सब्सटीट्यूट. सब्सटीट्यूट का मतलब आपको जूट नहीं मिल रहा है तो आप उसके बदले में क्या यूज कर रहे हो, आप यूज करोगे मेस्टा. ये एक प्रकार का इंफीरियर क्वालिटी है, बट इट इज अ गुड सब्सटीट्यूट ऑफ जूट. सब्सटीट्यूट का मतलब उसकी जगह पे आप इसको यूज करोगे. ओके, इट इज मोर कोर्स. कोर्स का मतलब होता है बिल्कुल पतला होता है. ओके, देखें आप, कोर्स का मतलब क्या होता है, पतला. मैं लिख दे रहा हूं पतला. ओके, थिन भी बोल सकते हैं इसको. लेस स्ट्रॉन्गर देन जूट. बाकी ये जो जूट है ना, उससे ये क्या होता है, कम स्ट्रॉन्गर होता है. इट कैन विथ स्टैंड मोर ड्राफ्ट, यानी ये ज़्यादा सूखा बर्दाश्त कर सकता है. देख लो आप इसको, मोर ड्राफ्ट यानी कंपैरिजन टू द टोसा और वाइट जूट, ये मेस्टा जो है इसकी क्वालिटी उतनी सुपीरियर नहीं है. ये जूट का सब्सटीट्यूट है. इट कैन स्टैंड मोर ड्राफ्ट सिचुएशन, यानी ये ज़्यादा सूखा सबसे ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है. तो ये काफ़ी अच्छा है. इट इज़ ग्रोन एट द प्लेस वेयर जूट कैन नॉट बी ग्रोन, यानी मेस्टाज को हम उस जगह उगाते हैं जहां जूट को उगाना संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है. बैग्स, अब उसका यूज देखें. बैग्स रफ क्वालिटी आर मेड फ्रॉम मेस्टा, यानी देखोगे आप जो कैरी बैग होता है ना, अभी मिल रहा है बहुत ज़्यादा कैरी बैग, उसमें जो रफ क्वालिटी का यूज करते हैं जूट, दैट इज गुड सब्सटीट्यूट. किसका है, जूट का, दैट वी कॉल मेस्टा. इट इज ग्रोन इन आसाम, बिहार, उड़ीसा एंड केरला. ओके, जूट प्रोवाइड ह्यूज रेवेन्यू. वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगाएं आप इस क्वेश्चन को. यहां से जूट प्रोवाइड्स अ ह्यूज रेवेन्यू, यानी जो हमारी गवर्नमेंट है ना, इसको बहुत ज़्यादा ये रेवेन्यू प्रोवाइड करता है टू द गवर्नमेंट. सो इट इज रेफर टू एज अ गोल्डन फाइबर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर. क्वेश्चन होगा, व्हाई इज जूट रेफर टू एज अ गोल्डन फाइबर. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो आपका आंसर होगा बिकॉज इट प्रोवाइड्स ह्यूज रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, यानी जो हमारी गवर्नमेंट है उसके रेवेन्यू का ये एक बहुत बड़ा सोर्स है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलोगे आप गोल्डन फाइबर. ओके, सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया. नेक्स्ट विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंडीशंस. जब हम क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो इसमें देखें जूट को ग्रो करने के लिए किन किन क्लाइमेटिक कंडीशंस को ध्यान रखा जाता है. इसमें भी खास क्या है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ वही पढ़ेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू ग्रो जूट. ओके, हमको उसके बारे में बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, जिन क्रॉप्स में रिक्वायरमेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो हमने वहाँ पे उनका क्लाइमेटिक कंडीशन डिटेल में लिया है. तो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं. ऐसा नहीं है कि सिंपली हम उसके डेप्थ में चले जाएं, बहुत बेनिफिट नहीं होगा हमको. चलिए, टेम्परेचर. इट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. कैसा इसको क्लाइमेट चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड. डन. टेम्परेचर 24 to 35 डिग्री. रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 90%. यहाँ ह्यूमिडिटी की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है. ह्यूमिडिटी इसके लिए कितना चाहिए होता है, 90%. इससे पहले हमने देखा था कॉटन में, वहाँ जो टेम्परेचर था 26 डिग्री सेल्सियस प्लस वॉज रिक्वायर्ड फॉर रप्चरिंग ऑफ द कॉटन बॉल. आपको याद होना चाहिए, वहाँ टेम्परेचर खास था, इसलिए हमने वहाँ उसको डिटेल में पढ़ाया. यहाँ ह्यूमिडिटी थोड़ा याद रखेंगे वर्ड, फिर आगे बढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट विल गो फॉर द रेनफॉल. यू सी, रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल शुड बी मोर देन 150 सेंटीमीटर, यानी काफ़ी बारिश की इसको जरूरत है. रेगुलर रेन इज नीडेड फॉर ग्रोथ एंड प्रोलॉन्ग ड्रॉप. अगर मान लो ज़्यादा दिन तक इसको बारिश नहीं मिली, प्रोलॉन्ग का मतलब फॉर ए लॉन्ग पीरियड. किसके लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए अगर इसको रेनफॉल नहीं मिला तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ हार्मफुल. ये प्लांट ड्राई अप हो जाएगा, सूख जाएगा. ओके, नुकसान हो जाएगा इस प्लांट को, इसलिए रेनफॉल का इस प्लांट के लिए बहुत ही खास और अहम जरूरत है इसके लाइफ में. आगे देखें, व्हेन यू टॉक अबाउट द सॉइल, जूट ग्रो वेल इन अलुवियल एंड लोमी सॉइल विच होल्ड मॉइस्चर. सबसे खास क्या है ना, विच होल्ड मॉइस्चर. देखें, यानी अलुवियल सॉइल में भी इसकी खेती कर सकते हैं आप, लोमी सॉइल में भी, लेकिन खास क्या है, विच होल्ड्स मॉइस्चर, यानी जो नमी को होल्ड कर सके. ओके, नेक्स्ट यू सी, एंड न्यूट्रिएंट्स प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम वॉशिंग अवे, यानी जो मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट दोनों को सॉइल होल्ड कर ले, पकड़ ले, अपने पास रखे, ताकि इस जूट को जब जरूरत हो हम प्रोवाइड कर सकें. उस सॉइल में जूट बहुत अच्छे से ग्रो करता है. ओके, और सबसे अच्छी क्या हो गई, वो लास्ट पॉइंट देख लो आप, क्लेड सॉइल गिव्स हैवीएस्ट यील्ड. सबसे ज़्यादा हम हैवी यील्ड की बात करें, मैक्सिमम यील्ड इज गिवन बाय द क्ले सॉइल. विच सॉइल, क्ले सॉइल. तो आई होप आपको ये क्लाइमेटिक कंडीशंस इसके इतनी ही ज़रूरत है, आपको समझ में आया होगा. ओके,
नेक्स्ट विल गो फॉर द मेथड ऑफ कल्टीवेशन, यानी आप इसको कल्टीवेट कैसे करते हो। इसमें से फर्स्ट है सोइंग। सोइंग का मतलब होता है आप कैसे इसको बो रहे हो। सी क्रॉप इज सोन बाय ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिलिंग मेथड। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है सपोज करो एक कोई बर्तन हो गया, डलिया वगैरह हो गया जिसमें आपने सीड ले लिया है और खेत में सीड को ऐसे फेंकते हैं ना, दिस इज ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ओके, ब्रॉडकास्टिंग मेथड में सबसे जो नुकसानदायक बात ये होती है कि कितना सीड गिर रहा है, कितने डिस्टेंस पे गिर रहा है, अमाउंट और डिस्टेंस ये फिक्स नहीं है, इसलिए ये अच्छा नहीं माना जाता है। ओके, ड्रिलिंग में हम देख लेते हैं। ड्रिलिंग में बेसिकली देखें आप, ड्रिलिंग में ड्रिल होता है, ड्रिल का मतलब ऊपर एक बकेट लाइक स्ट्रक्चर होगा, नीचे बम्बू हॉलो बम्बू होता है, ठीक। और यहाँ से जैसे मान लो यहाँ आपने सीड भर दिया है, अभी ड्रिलर आ रहा है, अब यहाँ से सीड धीरे 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 गिरता रहता है। इसमें खास बात क्या है कि आप इसको लाइन से बो सकते हो प्रॉपर डिस्टेंस के साथ, ठीक ना, प्रॉपर डिस्टेंस के साथ आप इसको बोगे तो यहाँ पे देयर इज लेस वेस्टेज ऑफ सीड, सीड का वेस्टेज कम होता है, प्लस देयर इज प्रॉपर गैपिंग बिटवीन द टू प्लांट्स विच हेल्प्स इन द परफेक्ट ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, ड्रिलिंग मेथड, इट इज सोन in the month of February on lowland and March and June on the highland। so यहाँ sowing important था, कैसे बोल लेते हैं इसको आप, it is sown by broadcasting and drilling method। okay, next हार्वेस्टिंग। अब देखो बेसिकली हार्वेस्ट की जब हम बात करें ना तो जूट इज हार्वेस्टेड बिफोर इट्स फ्लावरिंग, यानी जब ये फूल ले रहा है ना उससे पहले ही इसको हमको काट लेना होता है, फ्लावरिंग से पहले, अदरवाइज जो इसके स्टेम है ना दैट बिकम्स हॉलो बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट ड्रेन। ओके, तो उससे पहले हम जो किसान है इसको कट कर लेता है। आप देखें हार्वेस्टिंग क्या करते हैं। क्रॉप इज हार्वेस्टेड फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, यानी जुलाई से सितंबर के मंथ में, यानी 8 से 10 महीने के बोने के बाद आप इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, काट लेते हैं। विंटर सीजन गिव्स हायर यील्ड, यानी विंटर के सीजन में जो अगर जो फसल है उस समय जो आप कट कर रहे हो तो इसका जो यील्ड है यानी जो इसका प्रोडक्शन है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जो समर सीजन में है वहाँ जो प्रोडक्शन होता है थोड़ा कम, इन द सेंस वो इन विंटर सीजन जो उसमें से जो जूट निकलता है ना उसका साइज़ बड़ा होगा, और जो समर सीजन में जूट निकलेगा उसका जो साइज़ है वो छोटा होता है, जहाँ आपकी क्वालिटी पे असर पड़ता है। ओके, सो प्लांट इज कट व्हेन इट अटेन्स हाइट ऑफ 2 to 4 मीटर बिफोर फ्लावरिंग, यानी जब बिफोर फ्लावरिंग 2 to 4 मीटर का जब ये प्लांट हो जाएगा तो आप इसको कट कर लेते हो। सपोज करो देखो अब ये प्लांट हो गया, ठीक, आपने अब ये पूरा प्लांट हो गया, ये इसमें लीव्स वगैरह हैं सब, तो अब ये जब ये हो गया आप जितनी इसकी लीव्स है ना इसको निकाल देते हो और ऐसे डंठल इकट्ठा कर लेते हो, ठीक है। आप इसको किसान इसको एक रस्सी से बांध लेता है, ठीक है, हीप बना लेता है, इतना बड़ा हीप, ठीक है। इट इज बंडल्ड, उसको क्या बोलते हैं, ये जो हमने इसको यहाँ पे टाई अप कर लिया ना इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड बंडल। ओके, इट इज बंडल, यानी बहुत सारा इकट्ठा करके हमने रस्सी से उसको टाई अप कर लिया। इट इज बंडल्ड एंड पुट इन वाटर, इसको फिर हम कहाँ रख देते हैं, पानी में, फॉर रेटिंग, यही खास है। यानी आप किसान सपोज करो बहुत सारा बंडल इतना बना लिया, बहुत बड़ा रस्सी में बांध लिया, स्टेम्प्स हैं बहुत सारे, ठीक, उनको फिर ले जाके पानी में फेंक देगा वहाँ सड़ने के लिए। और ये सड़ने से क्या होता है ना, जो सेलुलोज था स्टेम के अंदर, हमने बात किया था स्टार्टिंग में, जैसे देखो आप, जैसे ये हो गया सेलुलोज, देखो सपोज करो ये स्टेम हो गया, इसके बाहर वाला जो पार्ट है सेलुलोज, इसी में ये जूट फाइबर्स हैं, ठीक। अब ये जो चारों तरफ इसके जो सेल्स है ना, ये इट इज पैक्ड विद सेलुलोज। ओके, अब ये सेलुलोज धीरे धीरे सड़ने लगता है और सड़ के जो ये जूट के रेशे होते हैं, जूट फाइबर ना, वो अपने जगह पे ही छूट जाते हैं, बाकी ये सब सेलुलोज हट जाता है, सड़ जाता है, जिससे कि हम बाद में इन रेशों को वहाँ से निकाल लेते हैं। इस सड़ने की प्रक्रिया को ही हम रेटिंग बोलते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछता है व्हाट इज रेटिंग। ओके, आई होप आपको रेटिंग समझ में आ गया होगा कि रेटिंग क्या बोलते हैं। देखो, रेटिंग मीन्स पुटिंग ऑफ द बंडल इनटू द वाटर, ओके, फॉर 20 to 25 days इज रेटिंग, यानी आप उसको फेंक देते हो पानी के अंदर, किसान फेंक देता है सड़ने के लिए, उस सड़ने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेटिंग। ये लगभग 20 से 25 दिन तक वहीं छोड़ दिया जाता है, किसान जाएगा उससे पहले बीच बीच में उसको थोड़ा हिला उला किया जाता है ताकि उसमें जो रेटिंग का प्रोसेस है और तेज हो जाए। ओके, नाउ दैट इज रिमूव्ड। अब जैसे मान लो कि रेटिंग हो गया, सड़ गया है, तो अब देखो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे जैसे ये हो गया आपका फाइबर, ओके, फाइबर हो गया। अब मान लो सड़ जाने के बाद ना इसका एक एक रेशा यहाँ अलग अलग दिखने लगता है। अब किसान इसको पकड़ के ऊपर से खींच लेता है और पूरे रेशे बाहर आ जाते हैं।
ओके। अब ये जो रेसे बाहर आ गए हैं और यहाँ ये लकड़ी है ना बीच वाला, वो अलग हो जाता है, उसको जलाने वलाने या दूसरे काम में लिया जाता है। हमको हमारे जो काम का था दैट वाज दिस जूट, ओके, जूट फाइबर। अब वो जूट फाइबर हो गया, मिल गया आपको, देन इट इज़ बाल्ड, उसको फिर हम बाल बना लेते हैं, मतलब उसका एक गुच्छा बना लेंगे गोल 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 गोल, जिसको फिर हम कहाँ भेज देते हैं, उसको जहाँ इंडस्ट्री वगैरह में भेजना होता है वहाँ भेज लेते हैं। आप देखेंगे रेटिंग क्या है, बंडल इज पुट इन वाटर एंड अलाउड टू रॉट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने सेपरेटली लिख दिया है क्योंकि बार बार आपके एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। ओके, बंडल इज पुट इन वाटर, बंडल को हम पानी में डाल देते हैं सड़ने के लिए, दिस इज रेटिंग। रेटिन सॉफ्टन्स द बार्क एंड हेल्प इन रिमूविंग द फाइबर, यानी जो उसका बार्क है, जो छिलका है ना, उसको बिल्कुल मुलायम कर देता है और उसके अंदर जो फाइबर है ना वो अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि जो सेलुलोज है पूरा सड़ गया। अब रेसे अलग अलग हो जाते हैं, किसान रेसों को पकड़ के खींच लेता है, डंठल अलग हो गया और ये आपका रेसा जो फाइबर है वो अलग हो गया। अब देखिए खास क्या है, रेटिंग के लिए कंडीशंस कुछ रिक्वायर्ड होते हैं, दैट इज पॉन्ड्स एंड लेक्स आर मस्ट फॉर जूट कल्टीवेशन। सपोज करिए आपने बहुत ज़्यादा जूट का कल्टीवेशन कर लिया, आपके पास कोई वाटर का सोर्स ही नहीं है जहाँ ये सड़े, आप रेटिंग ही नहीं कर पाएंगे, तो क्या पॉसिबल है जूट का कल्टीवेशन? नहीं। ओके, आफ्टर ड्राइंग फाइबर्स आर लूजली स्पन एंड वूवन एंड यूज टू मेक सैक्स, बैग्स एंड कारपेट्स, यानी उसके बाद हम उसको स्पन करके गोल गोल जैसे उसे हम क्या करते हैं, रस्सी नुमा बना के उसे ये सैक्स वगैरह बना लेते हैं। ओके, आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें, यू सी When we talk about the distribution, West Bengal occupies the first place। खास बात देखिए, सबसे ज़्यादा पॉन्ड्स और वाटर बॉडी अवेलेबल वेस्ट बंगाल में ही है, इसलिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर अवेलेबिलिटी ऑफ अ बिट लोअर टेम्परेचर विथ हाई ह्यूमिडिटी, यानी वेस्ट बंगाल में नमी ज़्यादा होना, ये दूसरा कारण है। देखें, इट ऑक्युपाइज द फर्स्ट प्लेस। कौन सा प्लेस ऑक्युपाई कर रहा है ये? इट ऑक्युपाइज द फर्स्ट प्लेस। यू सी 74.2% इन एरिया, यानी एरिया में 74.2% अकेले वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है और 80.29% इन प्रोडक्शन, यानी जितना भी भारत में जूट का प्रोडक्शन हो रहा है उसका 80% कौन कर रहा है? अकेले वेस्ट बंगाल। अब इसका क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछेगा कि क्या कारण है, व्हाट इज द बेसिक रीजन वाई वेस्ट बंगाल रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट? सो द प्रेजेंस ऑफ हुगली रिवर, यू सी प्रेजेंस ऑफ द हुगली रिवर सिस्टम, अलुवियल सॉइल ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, हॉट डैम्प क्लाइमेट। डैम्प का मतलब इसके अंदर ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा है। ओके, डैम्प वर्ड का मतलब क्या हो गया? ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी हाई है यहाँ पे। आर एक्सेलेंट फॉर द ग्रोथ, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस टॉपिक्स, यानी आप यहाँ से ये एक्सेलेंट फॉर द ग्रोथ ये पूरा ये याद रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो गया। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्या फैक्टर है, क्या खास है, आप बताएं जिससे कि जो जूट का कल्टीवेशन है वह वेस्ट बंगाल में बेस्ट होता है। तो presence of Hooghly river, alluvial soil of Ganga and Brahmaputra, hot and damp climate provide excellent conditions for the growth of jute. Okay, so I hope जितना यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है वो सारा हमने आपको डिस्कस कर दिया है। असम इज द सेकंड पोजीशन, आप देख लें इसको, सेकंड है, इसमें सुरमा वैली है, रिवर वैली, वहीं इसका प्रोडक्शन होता है। ओके, इट इज मेनली ग्रोन अराउंड द ब्रह्मपुत्रा एंड सुरमा रिवर वैलीज। आगे हम बात करें, थर्ड नंबर पे है आपका बिहार, इसमें पूर्णिया, सहरसा एंड दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में इसका प्रोडक्शन होता है। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा ग्रोज अलोंग द कटक, पुरी एंड बोलांगीर डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे खास यहाँ जो क्वेश्चन का पॉइंट हम बनेगा एग्जाम में, दैट इज फॉर द वेस्ट बंगाल। ओके, अब थोड़ा मैप में देख लेते हैं हम इसको, आप मैप में देख लो इसको, यहाँ देख लें, ये हमने यहाँ मैप लिया है, देख लें प्रोडक्शन दिया है, मैक्सिमम कहाँ है उसके हिसाब से कलर। ओके, ये अगर आपसे क्वेश्चन हो तो आप इस मैप से यहाँ से कर लें। ओके, ये मैप के लिए भी आपका हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द जूट। आई होप यू enjoyed my video, and if you feel that I am able to give you something good regarding this, your syllabus, some knowledge, something valuable or some value, then please you subscribe and share my channel to your friends so that all can be benefited. And most probably I will cover this time all the geography and bio syllabus also. Okay, so please keep on watching my videos. Thank you, have a great day. Jai Hind.